की सीमा पर इस साल भी हालात सामान्य नहीं हैं। भारत के बॉर्डर से लगा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से हर बार की तरह बाज नहीं आ रहा है। इस बार भी शायद पाकिस्तान को मुंह की खानी है और इसीलिए वो लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। जहां एक और चीन के साथ हाल में ही भारत के संबंध बेहतर हुए हैं, तो वहीं बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां भी हालात सामान्य नहीं है। दोनों देशों के सीमा बलों के बीच आए दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। अब इन सभी मुद्दों को लेकर और भारत में बढ़ रहे तनाव को लेकर सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपना बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपने बयान से दुश्मन मुल्कों को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी प्राथमिकता बॉर्डर को और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने की है। कश्मीर में बढ़ रहे आतंक को लेकर उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया। जम्मू कश्मीर में 2024 में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में कश्मीर के हालात को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले साल मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे। आज की स्थिति में घाटी और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी बचे हैं, हमें लगता है कि लगभग 80% या उससे अधिक पाकिस्तानी मूल के ही हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। नियंत्रण रेखा पर DGMO के बीच सहमति के बाद फरवरी 2021 से प्रभावी संघर्ष विराम जारी है। हालांकि आतंकी ढांचा बरकरार है। अब क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। The violence level is being orchestrated by the epicenter of terrorism, that is Pakistan. If it is so, is the word helping us in kind of controlling this epicenter in any way? If the support is not forthcoming the way India is looking at, this kind of a terrorist infiltration will continue to be there. However, as of now, we have inducted 15,000 additional troops in year 2024. And that is why you will find that the violence level has gone down, where we have been able to neutralize 73 terrorists, out of which 60%, like I told you, were Pakistan terrorists. The elections, if you see, the elections, the parliamentary elections, state assembly elections, both had nearly 60% plus minus voting. It means that as far as the local population is concerned, local population is going with the peace. The recruitment was only 4 for year 2024. That is negligible. So all the indicators which are there saying that the people of J&K are shunning violence, and this violence is completely being orchestrated by our Western adversary. इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भी साफ तौर पर सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपना बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश के साथ हाल ही में रिश्तों की बेहद दुर्गति हुई है। हिंदुओं पर हिंसा लगातार भभकी है और इसी हिंसा की आग अब भारत तक भी आ चुकी है। You asked about the Bangladesh. So I'll take your mind back to the comment which has been given by the Bangladesh chief recently, that India is strategically important to us. And same is vice versa. Bangladesh is strategically important to us. As of today, which is the other country which shares border with Bangladesh? It's a small portion, if you see, is on one side, on the southeastern side. Otherwise, it's all India. Therefore, we are the neighbors. We have to live together, understand each other, and any kind of animosity is not in each other's interest. As of today, firstly, there is no vulnerability from any side. I am in touch with the chief of Bangladesh during the time of when this changeover took place. I was in constant touch with him, and even thereafter, in November 24, we had a video conference also. As far as the military cooperation is concerned, is again going up in the same way. Our officers have moved there for the NDC also. There is no let up on that side. The only thing is, as far as the joint exercise which is carried out, because of the situation as of now, that we have postponed for some time, and as and when the situation improves, that exercise will also go on. When we talk about the relationship we should talk about when there is an elected government. So as of now, the relationship is with the military is well and perfect.
आपको बता दें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मेरा मिशन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत आधार स्तंभ के लिए भारतीय सेना को आत्मनिर्भर फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में तैयार किया जाए। सेना प्रमुख ने साफ तौर पर अपने बयान में यह भी कह दिया है कि मैं उत्तरी सीमा से बात करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि स्थिति सेंसिटिव है मगर स्थिर है। पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग और डेमचौक में समस्या सुलझ चुकी है। मैंने अपने कई कमांडर्स को ग्राउंड लेवल पर हालात से निपटने के लिए ऑथराइज किया है। फिलहाल देखा जाए तो ऐसे समय पर जब पहले ही दोनों देशों में संकट और विरोध की भावना बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में कहीं ना कहीं चीफ का ये बयान आना कई मुद्दों को साफ तौर पर दर्शाता है। फिलहाल अब उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।